हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब कंटिन्यू करते हैं। क्या डिस्कशन किया था मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में? इम्पल्स प्रॉपर्टीज। नाउ वही इम्पल्स प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, if there is an impulse signal del t and there is another signal xt, and if you multiply these two signals xt into del t, then what you will find? X of 0 into del t. Similarly, if the impulse signal is shifted towards right by an amount of t0, del t minus t0, and there is another signal xt, and if you multiply these two signals xt into del t minus t0, that means what you will find? That is equal to x of t0. Try to understand. Here minus sign t0, minus sign, then t0. That means here x of t0, then t minus t0. Similarly, if you are having a signal left shifted impulse, that means del t plus t0, del t plus t0, and you are having the signal, another signal xt, and if you multiply this xt with del t plus t0, then what you will find? You will get x of t0, sorry, x of minus t0, then del t plus t0. That means, see, in each case what you are doing, you are changing the area of the impulse. In this case, area of the impulse becomes this. In this case area of the impulse becomes this. See, this case area of the impulse becomes this. In this case, area of the impulse becomes this. Understood? That means if you are having any impulse signal and you are multiplying that impulse signal with any other signal, then you will find the result. What will be the result? The result is nothing but the area of the impulse changes. What amount will be the area of the impulse? That I have shown here. Understood? Now let us extend this property. Whatever the properties I have told, these are properties. These properties I have told, that is under the sampling properties, sampling property. Understood? Now suppose I am extending this. That means what I will do? I will multiply. Try to understand. In this case, what I will do? I will multiply xt with del t. Then whatever the resultant signal you will find, I have told. What will be the resultant signal? Resultant signal is nothing but x of 0 del t. Now this resultant signal you have to integrate from minus infinity to infinity with respect to time. Understood? What we are going to do? You have to integrate this resultant signal with respect to time. Then after integration, what result you will find? That we are going to observe here. That's all. Nothing is there. So see, you know, that means what I am going to calculate, minus infinity to infinity integration xt del t, then this is one signal you can say, because after multiplication of two signals you will find a resultant signal. Now this signal you have to integrate with respect to time, then what result you will find? Understood? See, this result is known to you, so that means integration minus infinity to infinity x of 0 del t dt. Now x of 0 is a constant, you can take outside, so that means you will find x of 0 integration minus infinity to infinity del t dt. And you know from definition, integration minus infinity to infinity del t dt is equal to 1. That means you may write which is equal to x of 0 into 1, because this total result is 1. You will find x of 0. Understood? So that means xt del t dt integration from minus infinity to infinity, the result is only x of 0. So how to write finally? Infinity minus infinity to infinity integration x of t del t dt, this result is nothing but only x of 0. Understood? Okay. Now next you just see, suppose you are having a signal which is a shifted impulse, that means del t minus t0. Suppose the impulse signal shifted towards right by an amount of t0. That means you just see del t minus t0. Okay. Now you know, if you integrate minus infinity to infinity del t minus t0 dt, that means directly we are integrating this impulse with respect to time from minus infinity to infinity. No doubt the area is 1, because whatever written here, the area is 1. Whether the impulse shifted to any position, this is unit impulse shifted to any position on time axis, the area will not change.
area will not change. Understood or not? So here suppose that is the impulse. Now area is 1. This is unit impulse. Now this impulse, if you shift to this location, see, suppose this is 1, then what will the area? Area will same. We are not changing only area. You are shifting the time axis only. You are changing the location of impulse on the time axis. That's all. Area will not change. Understood? So now similarly, if you are having del t plus t0, very simple. If you integrate minus infinity to infinity, only del t plus t0 dt. That means we are integrating only this impulse. Then the area is 1. Result is 1. Understood or not? Now, see here. So, if you multiply this shifted impulse with any other signal xt, suppose there is a signal xt and there is this simple shifted impulse xt minus t0. Okay, xt minus t0. That means you have to multiply this xt with xt minus t0. This is right shifted impulse to the location t0 on time axis. Now see, if you multiply and integrate, integration minus infinity to infinity x of t minus t0 then dt. See, after multiplication you are getting a single signal because that is the resultant signal of the multiplication. Understood? So now see here. So you know from sampling property xt minus t0, that is integration minus infinity to infinity x of t0 xt minus t0 dt. Now x of t0 is a constant with respect to t. So therefore we can take outside. This is x of t0, integration minus infinity to infinity, then x, this is del, this is del. We are multiplying with impulse, this is del. Del t minus t0, then dt. So what will find? This integration value is 1 because I have told this is area under del t minus t0. Area under del t minus t0 is equal to 1. Wherever the impulse on the time axis doesn't matter, the area is the same as del t. del t का एरिया कितना है 1. सो यहाँ पे एरिया कितना होगा 1. सो दैट मीन्स दिस इज योर x ऑफ t0 into 1. सो रिजल्ट इज x of t0. दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी x of t del of t minus t0 then dt is equal to x of t0. See here, very interesting, x of t0. Understood? Now suppose there is a left shifted impulse. Suppose you are having this impulse del t plus t0. Now you are multiplying this with respect to another signal xt. That means xt del t plus t0, and you have to integrate from minus infinity time to plus infinity time with respect to time axis. Then what result will find? Nothing. So you know this will give integration minus infinity to infinity x of minus t0 del t plus t0. This property I have discussed. Then dt. Now x of minus t0 is a constant. You can take outside. X of minus t0 integration minus infinity to infinity del t plus t0 dt. And you know x of minus t0, this result is nothing but 1 into 1. So that means you will find x of minus t0. Wherever the impulse on the time axis, the area under impulse same as del t. Same as del t. Understood? So therefore the result is x of minus t0. So here you can write integration minus infinity to infinity x of t del of t plus t0 dt is equal to x of minus t0. See here. So you can say these three under one property. After sampling you are integrating. Then what result you are getting, you just observe. After observation directly you can answer almost all the questions. Whatever the questions were given based on this. Very simple. Understood or not? Okay. So here these three you can say are another properties under another property of impulse. Now based on this you can solve many questions. Whatever the questions will be given based on this. Suppose you are having a signal, it is given e to the power pi t square del t dt integration minus infinity to infinity. Now nothing is there. See, del t, this is del t. Now this is, you can say, xt. Xt is equal to e to the pi t square, you can say. Are xt into del t. Xt is this.
नाउ व्हाट विल द रिजल्ट? x of 0. देखो xt del t dt integration minus infinity to infinity, result is 0. Now xt is this. Now you have to find out the result x of 0. x of 0 means in place of t use x of 0, e to the pi into 0 square 0, e to the power 0, that is 1. That means its value is 1. Very simple. Its value is 1. Understood? Similarly, whatever the question will be given to you, minus infinity to infinity. Suppose the question is given x of t minus t0 del t. Try to understand dt. You should not face confusion. Suppose this is your signal yt or anything else. So if you take this minus infinity to infinity, this is yt del t dt. What will be the result? y of 0. अरे यहाँ पे जो फंक्शन होगा टाइम में 0 पुट कर दो, y of 0. Now what is yt? Yt you have taken x of t minus t0. Now what is y of 0? Y of 0 x of 0 minus t0. t के जगह पे 0, that is x of minus t0. Understood? That means this integration having the result x of minus t0. Are you understood or not? Any time domain function here, and if it is multiplied with del t, then the result is nothing but you just put in place of t the value 0. Understood or not? Very simple. Now any signal you have, and you multiply this signal with del t. Suppose you are having this signal integration minus infinity to infinity, suppose sin t del t dt, there is no problem. Whatever the signal you have. Now here xt is equal to क्या? Sin t. Now what is the result? You know this result, xt del t dt, what? X of 0. X of 0. That means here xt sin t, x of 0 कितना होगा? Sin of 0. The result is 0. That's all. Sin 0 0. Similarly, suppose integration minus infinity to infinity cos t del t dt. Now here xt is equal to कितना है? Cos t. That means you have to find out the value of x of t, x of 0, xt cos t. Now x of 0. This is cos 0. Cos 0 कितना? 1. This answer will be 1. Whatever the questions will be given to you, doesn't matter. Are you understood or not? Very simple. Clear? Suppose you are having this signal integration, ध्यान से देखो, minus infinity to infinity 2t square plus 4 then del t dt. There is no problem. You just take xt is equal to 2t square plus 4. Then x of 0 you have to find out. The result is x of 0 ना? So now put actually 2 into 0 plus 4. The answer is 4. इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा. समझ में आ रहा है? कुछ भी क्वेश्चन अगर डेल टी के साथ मल्टीप्लाई होके दिया गया है एंड इंटीग्रेशन यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, द रिजल्ट यू कैन गेट वेरी इजीली. नाउ शिफ्टेड देख लेते हैं. ये इसमें से सपोज यू आर हैविंग वन सिग्नल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ध्यान से देखो इसको. सपोज टी स्क्वायर डेल टी माइनस 2 देन डी टी. नो प्रॉब्लम. सो नाउ लेट अस टेक एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. इधर देखो, तो दिस xt multiplied with del t minus t0, then integrating minus infinity to infinity, result is x of t0. Now here what is t0? T0 you can visualize from this bracket, del t minus 2, t0 is 2 here. That means the result is x of t0, that is equal to x of 2, that is equal to 2 square. X of 2, that is 2 square, because x of t is equal to t square. X of 2 is equal to 2 square, that is 4. इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा. वेरी सिंपल. अरे अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? ओके, गुड. नाउ सिमिलरली व्हाटएवर द क्वेश्चन विल गिवन टू यू, सपोज यू आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, सपोज टी स्क्वायर प्लस 5 देन डेल टी प्लस 1 डी टी. देखो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी टी प्लस टी, नो प्रॉब्लम. xt इज इक्वल टू, इसको मान लो xt और एनी अदर फंक्शन ft gt व्हाटएवर द फंक्शन यू जस्ट इमेजिन, नो प्रॉब्लम. yt. नाउ xt इज इक्वल टू कितना? t स्क्वायर प्लस 5. आंसर क्या होगा? x ऑफ माइनस t0. पहले t0 को देखो ना, t0 कितना है? 1 है. पहले t0 को यहाँ से देखो ना, t0 कितना है? 1 है. रिजल्ट क्या हुआ? x ऑफ t0 माइनस t0. ध्यान से देखो ये प्लस है, माइनस t0, दैट मीन्स x ऑफ माइनस 1. x of t is given, x of minus 1 निकाल दो. दिस इज माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5, दिस इज 1 प्लस 5, आंसर इज 6. इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यू कैन इजीली हैंडल, कोई भी क्वेश्चन यू कैन इजीली हैंडल. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? ओके, नाउ सपोज यू आर सेइंग सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन दिया गया है सर साइन टी बाई टी डेल टी डी टी, नो प्रॉब्लम, एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी बाई टी ले लो ना. ना इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डेल टी डी टी, एक्स ऑफ जीरो होगा ना. ना यहाँ पे एक्स ऑफ जीरो डाल दो, साइन जीरो बाई जीरो, एक्चुअली साइन जीरो बाई जीरो क्या है इसका वैल्यू? इंडिटरमिनेट टर्म. So limiting value you have to take, and if you take the limiting value, you will find one. You know, limit t tends to 0 sin t by t. देखो साइन जीरो, अगर जीरो डालोगे t के जगह पे, जीरो बाई जीरो फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल. सो दैट इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 साइन t का डेरिवेटिव कितना? cos t बाई 1. सो नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू बिकॉज देयर इज नो जीरो बाई जीरो फॉर्म एग्जिस्ट नाउ. सो इफ यू पुट दिस इज cos 0 by 1, 1 by 1, that is 1. That means what is its value? Its value you can say 1, and its value you can say 1. Understood or not? Okay, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है by knowing the properties, by knowing the properties. Okay, understood? I think there is no problem. हाँ, now देखो, अब देखो. सो एक्चुअली सारे प्रॉपर्टीज कवर कर चुका हूं मैंने इम्पल्स का. अभी देखो वो प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करते हैं. सपोज यू आर हैविंग ए सिग्नल एक्स टी, नाउ देयर इज अनदर इम्पल्स सिग्नल डेल, ध्यान से देखो इसको, टू टी माइनस 1. देखो डेल टू टी माइनस 1, देन व्हाट रिजल्ट यू विल फाइंड? एक्स टी डेल टू टी माइनस 1, व्हाट रिजल्ट यू विल फाइंड? I am going to cover now this beautiful concept, very interesting. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अभी मैं डेल टू टी माइनस 1 को दिखाता हूं. डेल टू टी माइनस 1 ये क्या है, इसको पहले पढ़ेंगे. डेल टू टी माइनस 1 को पहले पढ़ेंगे. नाउ पढ़ेंगे मतलब इसको कहां पे ड्रॉ किया जा सकता है, इसका एरिया क्या है, इसको पहले देख लेंगे ना. इसको कहां पे ड्रॉ किया जा सकता है, इसका एरिया क्या है, इसको पहले देख लेते हैं. क्योंकि कोई भी एक इंपल्स उसको तो शिफ्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज क्या है, उसका एरिया फाइंड आउट करना. एक्चुअली एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, वही इंपॉर्टेंट चीज है. तो वो जो कंसेप्ट है वो डेफिनेशन से पता चल जाता है. बिकॉज कोई भी एक यूनिट इंपल्स है, सपोज डेल टी, इसका एरिया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डेल टी डी टी कितना होगा? 1 होगा. ये तो मालूम है ना. ये डेफिनेशन से पता चल जाता है ये फंक्शन का एरिया क्या होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, देखो मैं क्या करता हूं, पहले डेल टी का डेफिनेशन यूज करता हूं. बिकॉज अगर डेल टी मालूम है, मैं बार बार समझा चुका हूं, अगर डेल टी मालूम है, सपोज यू आर हैविंग डेल टी, डेल टी क्या है? इन्फिनिटी है. टी कितने में है? 0 में. इज इक्वल टू 0 है. टी इज नॉट इक्वल टू 0 में, एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी एरिया अंडर दिस इंपल्स डेल टी डी टी कितना है? 1 है. यही डेल टी का डेफिनेशन है. ध्यान से देखो. अब मैं इसके लिए ये डेफिनेशन इसके लिए यूज करता हूं. टी के जगह पे 2t माइनस 1 डाल देता हूं. डेल 2t माइनस 1 कितना होगा? इन्फिनिटी. 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से डायरेक्ट t निकाल देता हूं ना. सो 2t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू हाफ. देयर इज नो प्रॉब्लम. सी हियर, t इज इक्वल टू हाफ. गुड. इज इक्वल टू 0, 2t, t is not equal to 0, 2 की जगह 2t minus 1, 2t minus 1 not equal to 0, which implies 2t not equal to 1, which implies t not equal to half. ये तो हो गया, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इंपल्स पता चल जाए, पता चल गया इंपल्स हाफ में एग्जिस्ट करेगा. दैट्स ऑल. ये जो इंपल्स हाफ में एग्जिस्ट करेगा. समझ में आया? अरे इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट, मतलब t इज इक्वल टू हाफ में ये हो रहा है ना इनफाइनाइट, तो हाफ में ही एग्जिस्ट करेगा, 1/2 में ही एग्जिस्ट करेगा. ये तो पता चल गया, ये पता चल गया. बाकी एरिया देख लेते हैं. देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दो तरीका है. आइदर डेफिनेशन में पुट कर सकते हो और एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो. यहां पे 1 है, इसका एरिया क्या होगा उसको भी निकाल सकते हो. दो तरीका मैं समझाया था. डेफिनेशन में पुट करने से क्या होगा, एरिया डायरेक्टली निकालने में से क्या होगा, मैं अभी दिखा देता हूं. देखो
ये माइनस इन्फिनिटी, अगर डेफिनेशन में डायरेक्टली 2t माइनस वन पुट कर रहे हो, देखो ये डेफिनेशन में, यानी कि ये t के लिए था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब 2t माइनस वन के लिए हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही चीज है। सो यानी कि यहां पे 2t माइनस वन के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। नाउ x ऑफ 2t माइनस वन, नाउ d 2t माइनस वन, ध्यान से देखो इसको, इज इक्वल टू 1, क्योंकि डेफिनेशन में पुट कर रहे हो मतलब यही स्टेटमेंट रखोगे, इज इक्वल टू 1 रखोगे, डेफिनेशन में पुट कर रहे हो 2t माइनस वन, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी, हाँ ये डेल है, x नहीं है डेल। अंडरस्टूड? अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, ये तुमको क्या चाहिए, dt, यहां पे d 2t माइनस वन है, तुमको चाहिए dt, क्योंकि टाइम एक्सिस में सबको डिफाइन कर रहे हो। देखो ये t के लिए, ये t के लिए यहां पे dt लग गया मतलब t के लिए हो गया ना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन यहां पे dt नहीं है, तो पहले इसको लिखते हैं। देखो इंटीग्रेशन यहां पे लिख लिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ध्यान से देखना इसको, इंटीग्रेशन लिख लिया ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा, अब डेल 2t माइनस वन लिखा, अब देखो d, ये इसको लिख सकते हो d 2t माइनस d1, अरे इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया ना, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह लिख सकते हो 1। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, 1 क्यों रखा, क्योंकि डेफिनेशन में पुट कर रहा हूं ना, इसका वैल्यू 1 है, 1 रखूंगा राइट हैंड साइड में। ओके, नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान से देखो। सो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी किसके लिए, 2t माइनस वन के लिए, 2t माइनस वन के लिए। नाउ डेल 2t माइनस वन d2t, d2t, ये तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो हो गया ना, इज इक्वल टू 1। नाउ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो 2t माइनस वन, ये 2t माइनस वन के लिए बोला था, डेल 2t माइनस वन, 2 बाहर ले सकते हो, 2 dt इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, क्लियर और नॉट? ओके, नाउ देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो ये एक्चुअली 2t माइनस वन कितना है, माइनस इन्फिनिटी, 2t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बाई 2, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स 2t माइनस वन जब माइनस इन्फिनिटी, t माइनस इन्फिनिटी होगा। नाउ 2t प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी 2t माइनस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 2t कितना होगा, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, t कितना होगा, इन्फिनिटी बाई 2 इन्फिनिटी, दैट मीन्स t भी इन्फिनिटी होगा। यहां पे 2t माइनस वन अगर इन्फिनिटी है, t भी इन्फिनिटी होगा। नाउ t डोमेन को सब कुछ चेंज कर लेते हैं। नाउ यहां पे t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 2t माइनस वन माइनस इन्फिनिटी, t भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अभी निकाला। नाउ डेल 2t माइनस वन, नाउ ये 2 को बाहर ले लेता हूं डायरेक्टली, ये 2 को बाहर ले लिया, dt इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, समझ में आया? नाउ ये 2 को डिवाइड कर लो अभी, दैट मीन्स इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल 2t माइनस वन dt इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया? यानी कि अब ये जो फंक्शन इसका एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया। समझ में आया? देखो दैट मीन्स डेल 2t माइनस वन हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, एरिया हाफ, एरिया का वैल्यू हाफ है। अगर तुम प्लॉट करोगे तो तुमको इस टाइप का प्लॉट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेप वाइज समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। दैट मीन्स अगर टाइम एक्सिस ये है, ये सपोज हाफ है, एग्जिस्ट कर रहा है कहां पे, हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इम्पल्स होगा, लेकिन एरिया कितना होगा, हाफ होगा, हाफ में इम्पल्स, एरिया दिस इज योर डेल ऑफ 2t माइनस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नाउ अगर ये फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एनी फंक्शन xt, ये फंक्शन अगर xt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक सब हाफ में वैल्यू जो होगा, एक सब हाफ में जो वैल्यू होगा उसका, अरे समझ में आया? सपोज दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एनी फंक्शन, दिस इज टाइम एक्सिस, सपोज दिस इज ए फंक्शन, नाउ दिस इज xt, इफ यू मल्टीप्लाई, इसका हाफ में वैल्यू जो होगा वही एरिया बन जाएगा। दैट मीन्स एक्स ऑफ हाफ देन दिस फंक्शन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर और नॉट? दिस इज द ब्यूटिफुल concept, try to understand. Clear or not?
ना, वही चीज मैं अभी दिखा रहा हूं। सो इट मीन्स रिमेंबर डेल टी माइनस वन, डेल टू टी माइनस वन, डेल टू टी माइनस वन, इसका एरिया हाफ है, एग्जिस्ट कर रहा है हाफ में, यही चीज है, एरिया हाफ है, एग्जिस्ट कर रहा है हाफ में, ठीक है। तो यानी कि इसको कैसे प्लॉट करोगे क्विकली, देखो क्विक प्लॉट डेल टू टी माइनस वन, देखो क्विक प्लॉट। तो इसको पहले शिफ्ट कर लेते हैं, प्लॉट क्या है, ये हाफ में एग्जिस्ट करेगा ना इंपल्स, एरिया हाफ होगा, इसको देख लेंगे ना, बस एरिया हाफ पता चलना चाहिए, यही चीज है। तो कैसे होगा देखो, तो पहले मैं शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया मतलब डेल टी माइनस वन कर दिया, उसके बाद स्केल कर दिया, तुमको मालूम है डेल टू टी इज इक्वल टू हाफ डेल टी, अरे 1/2 मॉड डेल टी, ये प्रॉपर्टी समझा था। लेकिन तुम बोलोगे सर डेल टू टी माइनस वन इज नॉट इक्वल टू डेल टू टी ना, एक्चुअली क्या है, पहले शिफ्ट करने के बाद तो वही इंपल्स रहेगा ना, इंपल्स तो वही रहेगा। अभी तो देखा था एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा एरिया। अरे समझ में आया कि नहीं, देखो इसका एरिया हाफ हो गया कि नहीं, ये तुम ऐसे सोच सकते हो, मैं समझा रहा हूं। पहले शिफ्टिंग किया, उसके बाद स्केलिंग किया, जब स्केलिंग करोगे क्या हो जाएगा, हाफ डेल टी माइनस वन, ये। अरे ये और एक इंपल्स हो जाएगा कि नहीं, ये सपोज अनदर इंपल्स, ये सपोज अनदर इंपल्स, एक इंपल्स है कि नहीं, इंपल्स है, सपोज दिस इज एक्स टी और वट एवर इज जस्ट सपोज एक्स टी, नाउ एक्स अप टू टी, इसको इंपल्स मान के चलो 1/2 एक्स अप टी, इंपल्स मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये इंपल्स सेम एनी अदर सिग्नल एक्स टी नहीं है। तो इसीलिए देखो इसको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले शिफ्ट कर लो, उसके बाद स्केल कर लो। इंपल्स को स्केलिंग जब कर रहे हो खाली एरिया चेंज कर रहे हो, टाइम स्केलिंग कर रहे हो, मतलब शिफ्ट जब कर रहे हो, ध्यान से देखो, ये डेल टी था, ये डेल टी, इसको शिफ्ट किया कहां पे, वन पे, वन पे शिफ्ट किया, डेल टी माइनस वन हो गया, डेल टी माइनस वन। अब क्या करना है, स्केल करना है, स्केल करने के बाद क्या होगा देखो, टाइम स्केलिंग ना, कितना अमाउंट में स्केल करो, 2 अमाउंट है, 2, देखो ए ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और 1/2 हो जाएगा 1/2। नाउ खाली एरिया चेंज होगा, एरिया कितना था, इसका एरिया 1 था, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट मीन्स यू विल फाइंड हाफ डेल ऑफ टी माइनस वन, सेम थिंग। व्हाट इज द कंक्लूजन, डेल टू टी माइनस वन इज सेम एज हाफ डेल ऑफ टी माइनस वन, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है कि नहीं। नाउ अगर कोई भी एक फंक्शन है, देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखते रहना। सपोज कोई भी एक सिग्नल है एक्स ऑफ टू टी माइनस वन, सॉरी डेल ऑफ टू टी माइनस वन, इसको कैसे लिखोगे, 1/2 डेल ऑफ टी माइनस वन, हो गया, हो गया। So now suppose xt multiplied by del 2t minus 1. This is xt multiplied by 1/2 mod del t minus 1. This is a constant 1/2 xt del t minus 1. What you will find? देखो xt into del t minus 1 1/2 x of 1. This is the answer. This is the answer. समझ में आ रहा है? This is the answer. Now अगर तुम इंटीग्रेट करोगे इस तरह, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सपोज एक्स टी डेल टू टी माइनस वन डी टी, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स टी, पहले इसको लिखो ना नॉर्मल फॉर्म में, 1/2 डेल टी माइनस वन डी टी, 1/2 मतलब 1/2 का मॉड, सो 1/2 का मॉड 1/2 बाहर ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी डेल टी माइनस वन डी टी, व्हाट रिजल्ट विल फाइंड, सी हियर, दैट इज 1/t. Now this is x of 1, x of 1. Answer is this. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, ये वीडियो बहुत बड़ा बन गया, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।